प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन मिलता है भजन संहिता उसका 20वां भजन 7 से 9 Psalm 27-9। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Lord, give victory to the King. Answer us when we call. Amen. आप देखें जो हिस्सा है वो हिस्सा उस प्रेयर के रिस्पॉन्स में है जो दाऊद के उस जमाने की जो कांग्रेगेशन है उसने की थी। और आप देखें पद 1 से लेकर 5 में वो प्रार्थना है। उसके बाद जो दाऊद जो है रिस्पॉन्स में कहता मैं जान गया हूँ। आप देखें क्या जान गया है, क्या उसने अनुभव किया है। परमेश्वर अपने दास को जो है अपने अभिषिक्त को बचाता है, अपने दाएं हाथ से बड़ाई वजह से स्वर्ग से छुड़ाता है, बचाता है। ये लागू होता है हम में से हर एक पर, आप पर, मुझ पर। आप देखें यहाँ जो 7 से लेकर 9 पद हैं वो भी उसी प्रार्थना का हिस्सा है जो दाऊद ने लिखी। दाऊद ने जो है लिखा, उस बात को पेन डाउन किया। आप देखें वो कह रहा है किसी को मैंने कौन वो लोग जो अन्य जाति हैं जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, उन्हें भरोसा है रथों का, घोड़ों का। उसका जो ध्यान है मंसूर है। जहाँ जो वो है ये खास कर मिस्री हैं तो आप देखें मेरे साथ लौट चलें निर्गमन उसका 14वां अध्याय, जहाँ पर जो है एक और जो है मिस्री सेना है, रथों घोड़ों में है, पीछे से आ रही है, सामने है लाल समुद्र। वहाँ आप देखें मूसा कहता है चुप हो जाओ, बी स्टिल। हाँ तुम जो है परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखोगे, वो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आप देखें यहाँ जो दाऊद है वो सोच जान रहा है। इस बात को हम देखते हैं एक्सोडस उसका 14 अध्याय 21-29 में। Exodus chapter 14 verses 21-29. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He jammed the wheels of their chariots so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, so that the waters may flow back over the Egyptians, their chariot and horsemen." Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. The water flowed back and covered the chariots and horsemen, the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived, but the Israelites went through the sea
on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. आप देखें यहाँ जो परमेश्वर ने उसे बचाया पानी से, वो जो उसकी जो फिरौन के जो वो थे Sena. सेना थी, उसके जो रथ थे, घोड़े थे, घुड़सवार थे, सब के सब डूब गए, मर गए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आप देखें भजन 33 और उसके 20 पद में। Psalm 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. Amen. आप देखें परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया और दाऊद को बचाया। पदार्थ पढ़िए प्लीज का। Padat. It says, they are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. they died, we rise up, we stand firm। आप देखें हमारे चारों ओर कितने लोग मर गए, कितने लोग जो है नाश हुए, परंतु हम जो हैं जिंदा हैं, हम जो हैं मजबूती के साथ खड़े हैं। आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए जो 20 अध्याय है, उसके पहले 5 पद। First 5 verses, yeah. Bhajan 20, 1 से 5. Psalm 20 verses 1 to 5. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord grant you all your requests. आप देखें इस समय दाऊद के दिमाग में है वो गोलियत जिसे दाऊद ने मार डाला था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 49 पद। 1 Samuel 17 verse 49. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground. आप देखें दाऊद के पास क्या था, वो जो उसकी थैली थी, उसका गोफन की जो थैली थी उसमें से 5 पत्थरों ने जो नाले से उठाए थे। गोलियत के पास थे बड़े बड़े हथियार, भाले, शील्ड, लेकिन जो आप देखें गोलियत को उसने एक पत्थर से मार। आप देखें एक्सोडस के 17वें अध्याय में देखते हैं मूसा ने क्या किया। आप देखें यहाँ जो है मूसा को जो है एक पहाड़ पर खड़ा किया गया, जब वो अमालेकियों से लड़ाई कर रहा था, उसके जो हाथ थे दोनों को जब तक वो उठाए रहे तब तो जो है दो उसकी आर्मी जो जीतती रही। वो जब जो है वो थक गया, उसने अपने हाथ नीचे किए, सेना हारने लगी। आप देखिए जो क्या था वो ताकत है, प्रार्थना की ताकत। आप देखें पद्मों में क्या लिखा, देखिए पद्मों में लिखा है, लेट मी हैव अ लुक। Psalm 20 verse 9. Lord, give victory to the king. Answer us when we call. Lord, give us victory to the king and give us answer to the whenever we call. जब तुझे पुकारे तुम्हें उत्तर दे। आप देखें जो दाऊद है वो एक्नॉलेज करता है, क्या एक्नॉलेज करता है कि परमेश्वर जो है वो राजा है, वही है, महान है। एक्नॉलेजमेंट। आप देखिए भजन 24:10 में। Psalm 24 verse 10. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty. वो राजा कौन है? वो है राजा महिमा में, मैं प्रभु। He is the King of glory. किंग ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु यहोवा है। आप देखें वही है जो हमें बचाता है, वही हमें सुरक्षित रखता है। दाऊद है जो परमेश्वर को परमेश्वर को मानता है। आप देखें जो
Psalm 95. Psalm 95 verse 3. For the Lord is the great God, the great King above all gods. जी, आप देखें जो राजा है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जो हमारा उत्तर देता है। Amen. लूका 1:37। Luke 1:37. For no word from God will ever fail. Hallelujah. परमेश्वर का कोई वचन हमारे अनुचित नहीं रहेगा, नेवर फेल। Amen. आप देखें वही बात जो कही यरमाया उसके 33 में और 3 पद में। Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा ये तू नहीं जानता है। Yes. आप देखें वो बात कही गई है मैथ्यू के 17 अध्याय के 7 अध्याय के 8 पद में। Matthew 7 verses 7 to 8. Ask, seek, knock. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Amen. आमीन। आप देखें ये बात कही गई इब्रानियों 4 अध्याय के 14 पद से लेकर 16 पद तक। Hebrews Chapter 4 verses 14 to 16। इब्रानियों 4 अध्याय 14 से 16 पद। Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. हमारे महाजन जो है हमारी न्याय जो है परखा गया, निर्दोष निकला। आइए फिर से एक बार हम उसके चरणों में जाएं, तो उनसे कहें, पुकारें। आइए फिर से एक बार प्रभु की ओर देखें, प्रभु की ओर जो है एक्नॉलेज करें, प्रभु से मांगे। आइए हमारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगे। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हम में से हर एक के साथ होती रहे। आमीन।